Shall we just bow our heads and really ask the Lord as we sang to open our eyes this evening? हम अपने आंखें बंद करेंगे और जैसे हमने गाने में गाया कि प्रभु हमारे आंखें खोले, उस रीति से हम प्रभु की ओर देखेंगे। Heavenly Father, we look to you this evening. Hallowed be your name in all the earth. इस शाम के समय हम आपको और देखते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। And Lord Jesus, you who open blind eyes, open our eyes this evening. प्रभु यीशु, जो आपने अंधों का आंख खोला, हमारे अंधे आंखों को भी आप खोलिए। You made seeing eyes blind and you made blind eyes to see. प्रभु, जो आंख खुले हुए हैं वो देख नहीं पा रहे हैं और जो बंद है उसे खोले प्रभु। Thank you that you have not allowed the God of this world to blind our eyes. प्रभु, आपने ऐसा कार्य किया कि इस दुनिया की जो चीजें हैं वो हमारे आंखों को बंद ना करें। You have given us faith in our hearts. आपने हमें हमारे हृदय में विश्वास दिया है। And we see you, Lord Jesus. हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, And we want to follow you. और आपके पीछे हम चलना चाहते We हैं। want to live the life that you've called us to live on this earth. और आपने जिस जीवन के लिए हमें बुलाया है उसके पीछे हम चलना चाहते हैं। So bless your word to our hearts this evening. आपके वचन को हमें आशीषित करके इस शाम के समय हमें In दीजिए Jesus' name. प्रभु Amen. यीशु के नाम में। Just to help you refresh your memory, जो हमने सुना वो हम वापस जरा याद करेंगे। you would remember how we began yesterday with 2 Corinthians and 1 Corinthians chapter 2 verse 9. हमने 1 कुरिन्ती दूसरा अध्याय का 9वें वचन से शुरुआत किया था कल शाम को। Things which eye has not seen, no ear has heard, चीजें no has entered the heart of man, all that God has promised for those who love him. जो प्रभु को चाहते हैं, जो आंखें देखी नहीं है, कान सुने नहीं है, वो जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। And to us God has revealed them through his spirit. हम जो प्रभु के हैं, And we saw that to live a spirit-filled life is a choice, a daily choice. और हमने यह भी सुना कि एक आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना भी ये हमारा स्वयं का एक चुनाव है। And how godly and how spiritual will become depend on the choices we make और every day. हम कितना आत्मिक बनना चाहते हैं वो इस पर निर्भर है कि हम कैसे जीवन के परिस्थितियों में कैसे चुनाव करते हैं। And we saw today that there are 3 choices that we have to make every day. और हमने देखा आज कि हमें कुछ चुनाव ऐसे करने हैं हर रोज। Many choices that we make. हम कई चुनाव करते हैं हर दिन। What are they? The 3 choices. Let me see if you are listening. 3 चुनाव जो हम करते हैं, आप कृपा करके The बोलिए। first thing. पहली चीज। Yes. Loudly. Choose to listen. पहला है कि प्रभु की वाणी सुनना। Choose to listen to God. Choose the one thing necessary. That's what we saw. एक चीज जो जरूरत की है वह है चुनाव करना प्रभु की वाणी सुनने के लिए। Like Mary, she chose to listen. जैसे मरियम के बारे में हमने सुना, जिसने सुनने के लिए चुनाव किया। Second thing we saw that we should choose to not be distracted. और दूसरा हमने सुना चुनाव कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, मतलब हमारा ध्यान बट ना जाए। Mary made her choice to listen. Martha made her choice to serve. मरिया ने यह चुनाव किया कि वह प्रभु की वाणी सुनेगी और मार्ता ने यह किया कि वह सेवा करेगी। There's no sin in serving. We saw that. सेवा करने में कोई गलती नहीं है। But if we get distracted, we get worried and bothered about many things, then we cannot listen to God. परंतु ये करते वक्त अगर हमारा ध्यान और हम चिंतामय हो जाते हैं तो हम सेवा नहीं कर रहे बराबर से। And the third thing we saw, और तीसरी चीज जो हमने सुनी, choose our minds, to let Jesus control our minds, to have the mind of Christ, and that we can experience through the power of the Holy Spirit. और तीसरी चीज हमने सुना कि पवित्र आत्मा के बल के द्वारा हमारा मन जो भटकता है वो प्रभु यीशु में केंद्रित होके हम प्रभु पर ध्यान दे सकते There are many हैं। other choices, but these are 3 important choices we make. कई अनेक चुनाव ऐसे हैं, परंतु ये 3 मुख्य चुनाव हैं। To listen to God, to एक not है- get distracted, and to have the mind of Christ.
एक है कि प्रभु की वाणी सुनना, दूसरा है हमारे मन को संतुलित रखना, और तीसरा है कि To let the Spirit control our mind. पवित्र आत्मा हमारे मनों को नियंत्रण करे। So that's a daily choice. यह हमारे प्रतिदिन का एक चुनाव है। But I want to share with you this evening something that God has spoken to my own heart. मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने And कार्य किए हैं। this is the stumbling block of a spirit-filled life. एक आत्मिक जीवन, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन जीने में एक बाधा लाने वाली चीज है ये। Many stumbling blocks. कई ऐसे बाधाएं हैं। And God has shown me many stumbling blocks. प्रभु ने कई ऐसे बाधाएं मुझे दिखाई हैं। But this is something I think that we all suffer from. परंतु यह एक चीज है जो हम सभी लोग, यह बाधा हमारे जीवन में आती है। Nearsightedness, I call it. वह मैं बोलता हूं कि नजदीक में देखना, दूर का ना देखना। Spiritual myopia. उसको बोल सकते हैं आत्मिक रीति से कम दूरी देखना, दूर का ना देखना। Yes. You know, physical myopia, that means you can see things before you, but you can't see things in the distance. शारीरिक रीति में हम जानते हैं कि ये मायोपिया का मतलब यह है कि नजदीक की चीज हम देख सकते हैं परंतु दूर की चीज हम नहीं देख सकते। That can be corrected. परंतु वो उसका सुधार हो सकता है। Physically, I'm saying. ये शारीरिक रीति में मैं बोल रहा हूँ। You can either get lenses in your eyes or you can wear spectacles. आपको आंखों में वो लेंस डाल सकते हैं या चश्मा डाल सकते हैं, उससे शारीरिक रीति से ये सुधार आ सकता है। But spiritual myopia, परंतु जो आत्मिक इस रीति से नजदीक का देखने का जो है, I don't know how many of us really want that to be cured and corrected. मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो नजदीक की चीज देखने का आत्मिक रीति से उसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं। And we are content to live like that. और हम उसमें तृप्त हो गए हैं आज की स्थिति में वो नजदीक का देखते हुए। Do you know that it can be spiritually fatal? क्या हम जानते हैं कि ऐसे हम गए तो आत्मिक रीति से हमारी मृत्यु हो सकती है? I want you to look at John chapter 8 verse 12. मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना का 8वां अध्याय का 12वां वचन देखें। John chapter 8 verse 12. मत्ती 8 का, यूहन्ना 8 का 12। And Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जग की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। And you turn a couple of pages and look at John chapter 11 and verse 10. कुछ पन्ने हम आगे जाएंगे, यूहन्ना 10वें अध्याय का। And you know, the disciples said to Jesus, you know, when he wanted to go to Jerusalem, he says, are you going to go there again? They are seeking to stone you, verse 8, and you're going there again? और 8वें वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि जब शिष्यों ने बोला कि आप यरूशलेम में जा रहे हैं जहां आपको पथराव हो जाएगा करके प्रभु से बात करते हैं। And Jesus answered and said, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. प्रभु ने बोला कि दिन में 12 घंटे होते हैं, अगर कोई प्रकाश में चलता है तो वो गिरता नहीं है। But if anyone walks, verse 10, if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. परंतु कोई रात में चलता है तो वो लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। He's speaking spiritually there. If anyone walks in the night spiritually, he will stumble because the light is not in him. वहाँ आत्मिक रीति से प्रभु बता रहे हैं कि कोई अगर अंधकार में चल रहा है तो प्रभु की ज्योति उसमें नहीं है। I'm not afraid of going there again, even if they want to stone me and they want to put me to death. वह इस रीति से बोल रहे थे कि मैं यरूशलेम में जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ चाहे वे मुझे पथराव से मार क्यों न The दें, light is in me. क्योंकि वह प्रकाश जो ज्योति है वो मेरे में है। And I want that we ask ourselves this evening, is the light in us? मैं यह आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वो प्रकाश हमारे जीवन में है क्या? I'm not an ophthalmologist, but I understand that myopia, physical myopia, is when the light shines on your retina
just before you. मैं चश्मा या आंखें के डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक प्रभु का प्रकाश हमारे आंखों में नहीं आता तब तक हम सही रीति से So देख नहीं सकते। you only see things before you. हम केवल नजदीक की चीज को ही देख पाते हैं, You can't see things in the distance. हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते। Short-sightedness is what they call it. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नजदीक का देखना। Now, I actually don't need this pair of glasses मेरे को ये चश्मा की जरूरत नहीं है, because I've had both my eyes cured. क्योंकि मेरे आंखों को उन्होंने शस्त्रक्रिया करके उसको ठीक किया The था cataract has been removed and I can see without glasses, I can read. और And I can see also what's in the distance. और वो मेरा जो कैटरैक्ट का जो बीमारी था उसमें से मुझे सही किया है, इसके कारण मैं नज़दीक का भी देख सकता हूँ और दूर का भी देख सकता But हूँ। I use it परंतु to मैं read small print. परंतु छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए मैं इसका उपयोग करता हूँ। Now, myopia, like I said, is a light that shines there that you can't see in the distance. जो मायोपिया करके जो बीमारी है वो नज़दीक में प्रकाश आने के कारण नज़दीक का दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता। But normal vision, when the light shines on your retina, you can not only see before you, you can see in the distance. परंतु जब सही रीति से प्रकाश हमारे अंदर आता है तो वो हमें न केवल नज़दीक का दिखाता है परंतु दूर का भी दिखता है। Spiritually, आत्मिक रीति से if the light is in us, in me, अगर वह प्रकाश वो अगर हमारे अंदर है, not just before me, केवल मेरे सामने नहीं, I can see right ahead, तब मैं दूर की चीजों को भी देख सकता हूँ spiritually speaking. आत्मिक रीति से। So Jesus is not afraid. प्रभु इसलिए भयभीत नहीं था। He says, he who walks in the night will stumble because the light is not in him. प्रभु ने बोला कि जिसमें वो प्रकाश नहीं है वह अंधेरे में जाके गिर सकता है। I want to ask everyone here, do you have the light in you, my brother and sister? मेरे भाइयों बहनों, मैं हर एक से पूछना चाहता हूँ, वह प्रकाश क्या आपके अंदर है क्या? I'm not asking if you are born again. मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं। I'm sure all of you, I trust all of you are born again. मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से सब लोग नया जन्म पाए हुए हैं। I trust all of you have repented and come by faith, come to Christ. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों ने पश्चाताप किया है और प्रभु के पास एक पापी की रीति में आए हो। Now you think I have a ticket to heaven. I have a ticket to heaven. इस कारण मेरे पास अभी एक टिकट है मेरे को स्वर्ग जाने के लिए। Are you satisfied with that? क्या आप इससे तृप्त हो गए हो? You don't think that there's more that God wants to give you? क्या आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु आपको और भी कुछ ज्यादा देना You चाहता don't है? believe that the things that God has prepared, that eye has not seen and ear has not heard, nor has entered in the heart of man, all that God has prepared for you, you don't believe that? क्या आप विश्वास नहीं करते हो कि जो आंखें नहीं देखी, जो सुनी नहीं है, जो अच्छी चीजें प्रभु ने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्या आप नहीं विश्वास करते? Yeah, you may believe it now because I'm saying it to you. शायद मैं अभी बोल रहा हूँ इस कारणवश आप यह विश्वास कर But रहे हो, if the light is in you, परंतु अगर वह प्रकाश आपके अंदर रहा, the life of Jesus is in you, वह प्रभु का जीवन आपके अंदर रहा, and that light is getting brighter and brighter, और वह जो प्रकाश है वो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, that you can till it becomes noonday, ताकि वह जो मध्य समय का जो प्रकाश है उस रीति that से, you can see everything not only before you, but you can see everything that is ahead of you. ताकि केवल जो अभी का नहीं परंतु आगे के चीजों के विषय में भी आपको एक दूरदृष्टि है। This is what Jesus meant when he said, if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. यही चीज प्रभु यीशु ने बोला था, जो रात में चलता है वह गिर जाता है क्योंकि उसमें वो प्रकाश नहीं है। That's why I said at the beginning of this camp, it is not optional that you ask for the baptism of the Holy Spirit. इसीलिए मैंने जब हमारा मीटिंग शुरुआत हुआ था ये बोला कि जो पवित्र आत्मा चाहिए वो आपे आप नहीं है। God sent Ananias to Saul of Tarsus. प्रभु ने अननियास को सौल के पास भेजा था। He had a personal encounter with Jesus on the road to Damascus. सौल को दमास्कस की ओर जाते वक्त प्रभु के साथ उसने मुखामुख देखा था, But he was blinded. परंतु उसके आंख अंधे हो गए थे। And God told Ananias, I want you to go and lay your hands on Saul and pray, and that he will be baptized in the Holy Spirit. इसलिए प्रभु ने अननियास को बोला कि तू जाके उससे मिल और उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर और उसको पवित्र आत्मा आएगा। And you read that there. जब हम वहां पढ़ते हैं
That's Ananias went and he said, Brother Saul, the Lord has sent me to lay my hands on you and for you to be baptized in the Holy Spirit, to receive the Holy Spirit. अननियास वहां जाने के बाद शाऊल से बोलता है कि प्रभु ने मुझे भेजा है ताकि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं ताकि तू बपतिस्मा पाए पवित्र आत्मा का। What happened? परंतु क्या हुआ? The next verse. उसका अगला वचन क्या बोलता है? Scales dropped from his eyes. वहां लिखा है कि उसकी आंखों से एक पत्थर गिर गया। The cataract was removed. वह जो दूरदृष्टि का जो तकलीफ था वह उसकी आंखों से गिर गया। When his eyes were open, he was no longer wanting to persecute Christians. जब उसकी आंखें इस रीति से खुल गए तब उसके बाद उसने क्रिस्तियों को तकलीफ नहीं देने लगा। Because he had a personal encounter with Jesus. क्योंकि उसने प्रभु को मुखामुख देख लिया था। And now when the Holy Spirit came upon him, the light was in him. और जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया वह प्रकाश प्रभु का उसके अंदर आ गया। And it got brighter and brighter till the end of his life. और वह जो प्रकाश है वो बढ़ता गया उसके जीवन के अंत तक। That's why he became the man that he became. इसीलिए वह व्यक्ति वह बना जो प्रभु चाहता था उसके विषय में। That's why we can follow his example. इसीलिए हम उसके पथ चिन्हों पर चल सकते हैं। He says, follow me as I follow Christ. इसीलिए वह बोले कि मैं जैसे चल रहा हूँ मेरे पीछे आप भी चलिए। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, please do not go away from this camp without being assured that you have received the power of the Holy Spirit. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये कैंप से जाने से पहले यह निश्चय कर ले कि प्रभु ने आपको वह पवित्र आत्मा से भरा है। We saw that there are perilous times to come. हम जानते हैं कि आने वाले दिन हमें कठिन The रहेंगे। last days it will be difficult, we saw, to be a Christian. आखिरी दिनों में एक क्रिस्ती बनकर जीना कठिन काम होगा। And I want to say to you in Jesus' name, if the light is not in you and me, we will stumble. मैं बोल रहा हूं कि अगर वह प्रकाश हमारे जीवन के अंदर नहीं रहा तो हम लड़खड़ा जाएंगे। We'll fall away from the faith. हम विश्वास से गिर जाएंगे। But I thank the Lord that the light is in me. मैं धन्यवाद देता हूं कि वह प्रकाश मेरे जीवन के अंदर है। And I know whom I have believed. और मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है। I know He's able to keep that which I have committed to Him against that day. मैं जानता हूं कि उस दिन तक जो प्रभु ने मेरे ऊपर रखा है वह पूर्ति करेगा उस आखिरी दिन I तक। know I'll have the grace to fight the good fight of faith. मैं जानता हूं कि वह कृपा प्रभु ने दिया है ताकि मैं वो अच्छा लड़ाई कर I know सकूं। God will give me the grace to finish the course मैं जानता हूं कि वो अंत तक चलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करेगा, right till the end. उस अंतिम क्षण तक। But like I said, परंतु जो मैं बोल रहा हूं, the problem with God's people today, जो तकलीफ जो क्रिस्तियों के बीच में है, most people suffer with spiritual myopia. कई लोग वह दूरदृष्टि ना होने के बीमारी से फंसे हुए हैं। Nearsightedness. जो नजदीक का ही देख सकते हैं, They're short-sighted. वह नजदीक का ही देख सकते हैं। Peter speaks about that. पत्रस इसके विषय में बोलता है। He speaks about those who are short-sighted, not adding to their faith. पत्रस बोलता है उनके विषयों में जो छोट नजदीक का देखते हैं वो आगे बढ़ते नहीं हैं। 2 Peter chapter 2 verse 1. You don't need to turn there. 2 पत्रस 2:1 में वहां हम नहीं जाएंगे अभी। I was reading an article, a very interesting statement. मैं एक पत्री पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात लिखी थी The वहां पर। article was entitled Spiritual Health Warning. वहां लिखा हुआ था कि आत्मिक रीति से हमारे हेल्थ को चेक करना। And this is how it goes, this article. वह जो पत्री में लिखा था वो ऐसे जाता He है। says there's a deadly epidemic that is currently sweeping the church. क्रिस्ती कलीसिया में एक ऐसा बीमारी फैल रही है। The condition primarily affects the heart, mind and soul of its victim. जो बीमारी है वह उसके बुद्धि, उसके आत्मा और उसके मन को छूता है। And can lead to serious, even fatal spiritual health problems if left untreated. अगर उसका सही रीति से उसका उपचार नहीं किया तो आखिरी में जाके आत्मिक मृत्यु हो सकती है। And it goes on to say, it says, unlike spiritual blindness which only affects unbelievers, spiritual myopia or nearsightedness has been detected in a significant and growing number of Christians. जैसे हमारा आत्मिक हम नज़दीक की दृष्टि के विषय में हम बोल रहे थे, वह अगर सही रीति पर उसका जांच नहीं किया गया तो कई क्रिश्चियों के बीच में जैसे बीमारी फैल रही है वो हमारे बीच में भी फैलेगी। I told you what myopia is. मैंने मायोपिया के बीमारी के विषय में बताया आपको। I told you what spiritual myopia is. मैंने आत्मिक दूरदृष्टि ना होने के विषय में भी बताया। Spiritually, it means that victims focus is almost exclusively on their immediate surroundings
without seeing the bigger picture. वह इस रीति से है कि जो आज की अवस्था है, अभी की अवस्था है, उसी पर हम केंद्रित करके दूर की जो चीजें हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते He हैं। goes on to say, listen to this. वह आगे जाकर इस रीति से He बोलता says, है, ध्यान से सुने। as a result, victims tend to view God's truth through the lens of their own circumstances. इस कारणवश क्या होता है क्रिस्तियों के बीच में कि वे अपनी अवस्था में आज की चीजों पर ही वह केंद्रित रहते हैं, As opposed to viewing their circumstances through the lens of God's truth. प्रभु का जो सत्य है उसके द्वारा दूर की दृष्टि के साथ वह आज की अवस्था को वो देख नहीं पाते। So they suffer with spiritual myopia. इस कारणवश वह यह मायोपिया करके बीमारी जो मतलब कि दूर का नहीं देख पाते They do nothing to get cured of it. और उसमें से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ भी नहीं करते How हैं। quickly, when you are not able, you have to be putting the Bible there to read, and then somebody tells you better go and you see your eye doctor. हम कितना जल्दी जब हमारे शारीरिक आंख में कुछ प्रयास होता है और हम पढ़ नहीं पाते, दूर देखते हैं, तो जरूर हमारे नजदीक वाले बोलते हैं जाके डॉक्टर को दिखाइए। We are so quick to go and correct our physical vision. हम कितना जल्दी अपने शारीरिक आंख की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं, How about our spiritual vision? परंतु हमारी जो आत्मिक दृष्टि है उसके विषय में हम क्या करते हैं? Won't we go to the great physician? क्या हम उस बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं? Can't we go to him and say, Lord, I can't see things clearly. क्या हम हमारे परमेश्वर के पास जाके नहीं बोल सकते मैं सही रीति से नहीं देख पा रहा हूँ? I stumbled when I had that problem in my office. जब मेरे ऑफिस में कुछ परेशानी हो जाते तो मैं गिर बैठता हूँ। I lost my cool there. मैं वहाँ मेरा ठंडापन मेरा निकल गया। I stumbled in my home life, in my family life. मैं मेरे पारिवारिक जीवन में मैं गिर गया। Constantly stumbling. मैं बार बार गिर रहा हूँ प्रभु। Lord, I can't see properly. प्रभु मैं सही रीति से देख नहीं पा रहा हूँ। And we don't even hear when Jesus comes to us and says, what do you want me to do for you? और हम यह भी नहीं सुन पाते जब प्रभु हमारे पास आके बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं? And do we have the audacity to say, Lord, you know what you should do for me? क्या हम इस रीति से उत्तर देते हैं अहंकार के साथ कि आप मेरे लिए क्या करें? ऐसे हम पूछते हैं क्या? I'm such an angry, irritable man. I'm always losing my temper. You know what you should do for me? मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ, जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं मालूम क्या कि आप मेरे लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बात करते हैं हम। And the sisters can say, Lord, you know, I'm so impatient. I'm not able to manage the home and my family. You know what you should do for me. और बहन लोग ऐसे बोल सकते हैं आप जानते हो मैं कितना जल्दी निराश हो जाती हूँ और आप जानते हो मेरे लिए आप क्या करना चाहिए? That is our pride. यह हमारा अहंकार है। We're not even willing to go to a godly brother to say, brother, I need help. Pray with me. और हम इतना भी नहीं चाहते कि एक अच्छे आत्मिक भाई के पास जाकर हम पूछें प्रभु भाई मुझे मदद चाहिए। You're not willing to say to the Lord, I want to see. और हम यह भी नहीं करना चाहते कि परमेश्वर के पास जाके प्रभु मुझे देखना है। I need a second touch. मुझे तेरे से एक दूसरी बात तेरा एक छूना चाहिए। I want you to cure me of my spiritual nearsightedness. प्रभु मेरी जो आंखों की जो नजदीक की दृष्टि है उसमें से मुझे छुटकारा पाना है। I'm always seeing things from a human point of view. मैं हमेशा इस धरती के चीजों को एक मनुष्यिक रीति से देखता हूँ। I'm always thinking that you are punishing me for some sin I committed in the past. मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह जो कुछ हुआ है वह प्रभु मुझे दंड दे रहा है क्योंकि मैंने पीछे कुछ गलती की है। You know, Peter, who received such a tremendous revelation from God, पतरस जिसको प्रभु ने इतना बड़ा प्रकटीकरण किया था, when Jesus asked him, who do you say I am? जब प्रभु ने पतरस से पूछा कि मैं कौन हूं करके जब पतरस से And पूछा he था, said, you are the Christ, the Son of the living God. तब उसने बोला कि आप क्रिस्त हो परमेश्वर के। And Jesus praised him and said, Peter, flesh and blood has not revealed that to you, but my Father in heaven. परंतु उसको ऊपर उठाते हुए बोला कि यह परमेश्वर नहीं तेरे आंखों को खोल के दिया है करके। He got revelation. वहां उसको प्रकटीकरण हुआ। And we get revelation. हमें भी वैसे प्रकटीकरण मिलता We है। see many things in the scriptures. जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, I trust you got some light and revelation in the meetings we've been having. मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जो हमने वचन सुना उसके द्वारा आपको कुछ प्रकटीकरण मिला है। But does that cure us of our spiritual nearsightedness? क्या वह चीज हमारी आत्मिक जो नजदीक की दृष्टि की बीमारी है उसमें से हमें छुड़ाता है? Never cured Peter.
उसके कारण जो पतरस को वह बोलने के कारण उसको Why? छुटकारा नहीं मिला था। क्यों? He didn't have the Holy Spirit yet. क्योंकि उसको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिली So थी। when Jesus spoke about the cross and about going and giving his life for us on the cross and being crucified and raised up on the third day, he said, Lord, no, that cannot happen to you. Took him aside from all the other disciples. That can't happen to you, Lord. इसलिए जब पतरस बोलने लगा कि आप अब जाके वहां मरोगे और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ोगे, तब वो बोले नहीं नहीं आप मत जाइए करके प्रभु यीशु को उन्होंने रोका। Imagine that, he takes Jesus away from the other disciples and said, what are you talking? What are you saying? सोच के देखिए पतरस यीशु को बाकी शिष्यों के बीच में से हटाकर बाजू में लेके आकर बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हो, क्यों क्रूस पर जाना चाहते हो? You are the Messiah. You're going to begin your kingdom. You're going to rule as a king. आप तो मसाया हो, आप तो एक राजा बन के यहाँ पे राज करने वाले हो, आप इस क्रूस पर क्यों जा रहे हो? He didn't say those words. इन चीजों को उन्होंने ऐसे बोला नहीं, That's what he was thinking. परंतु यही उनके मन में था जब वह And बोल what रहे was थे। Jesus' reply to him? क्या प्रभु यीशु ने उसके प्रति उत्तर में दिया? Get behind me, Satan. मेरे पीछे हो जा शैतान। You're looking at things from a human point of view. तू जो देख रहा है वो मनुष्य की रीति में देख रहा है। You set your mind on man's interest and not on God's तू interest. मनुष्य के उद्देश्यों के ऊपर तू चल रहा है, परमेश्वर के उद्देश्य पर नहीं चल रहा You है। are a stumbling block to me. तू मेरे लिए एक रुकावट है। So we see that Jesus used the word there. वहां देखिए प्रभु किस रीति के वचन वह You उपयोग में see लाता that है। when we look at things from a human point of view, it is a stumbling block right before our eyes and we will stumble. और जब हम मनुष्य के रीति में देखते हैं तो हमें ऐसी चीजें सब एक रुकावट जैसे दिखता है। The danger of such a condition ऐसी एक अवस्था का जो डेंजर है, is not corrected and cured, it can be spiritually fatal too. अगर वह उस समय पर अगर उसका उपचार नहीं होता है तो हमारी अवस्था आखिरी में बहुत बुरा हो Look सकता है। what Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 1. एक तिमोथी एक अध्याय में देखिए पौल क्या बोलता है तिमोथी को। Timothy was really a man of God, but there are some things that Paul, encourages him, exhorts him, and he tells him here in verse 18, 1 Timothy 1, verse 18. He says, "This command I entrust to you." एक तिमोथी जो थे एक अच्छे भाई थे, तब भी देखिए पौल कैसे तिमोथी को बोलता है। Timothy, my son, in accordance, verse 18, with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight. हे मेरे पुत्र तिमोथियो, तेरे विषय में जो भविष्यवाणी पहले की गई थी कि Verse 19, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसके उपेक्षा कर के कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। They suffered shipwreck. वहां लिखा है कि उनका जहाज डूब गया है। And he names two brothers there, वहां दो भाइयों के विषय में Hymenaeus and Alexander, हाइमेनियस और सिकंदर करके आगे लिखा हुआ है। दो whom I भाई handed over to Satan. जिनको मैंने शैतान के हाथ में सौंप दिया Not है। only they made shipwreck of their faith, but they were blaspheming. और वहां केवल उन्होंने अपने जीवन के जहाज को डुबा दिया, परंतु वह गलत चीजें बोल रहे You see थे। what nearsightedness can mean? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे नजदीक का दृष्टि का बीमारी होने के कारण क्या होता है? It says, I handed them over to Satan so that they may taught not to blaspheme. इसीलिए यहाँ पौल बोलता है कि मैंने उनको शैतान को दे दिया ताकि वह गलत बातें ना बोले। But these two brothers outside the church, ये दो भाई जो थे कलीसिया के बाहर रहना they were पड़ा। in the church. ये दो भाई लोग थे, वह कलीसिया के ही भाई थे। Many others he names by name. कई ऐसे भाइयों के विषय में पौल नाम लेके बोलता है। Another place he names Hermones and Phygelus. आगे एक जगह पर वह हरमीनिस और फिजलिस के बारे में बात करता है। Paul was not afraid to name people by name. पौल को भय नहीं था ऐसे लोगों के नाम बुलाकर उनके बारे में बताने को। Because they went around upsetting the faith of others. वह दूसरों के विश्वास को ठुकराते हुए कई लोगों से ऐसे बात कर Those रहे who थे। deserted him, he named them by name. जिन्होंने उनको छोड़कर चले गए, उनके नाम लेकर उनके बारे में विषय में वह लिख रहा है यहाँ पर। So spiritual nearsightedness or spiritual myopia can be fatal. इसीलिए नजदीक की दृष्टि की बीमारी होगा तो अंत में हमारा नाश बहुत बुरा हो सकता We है। don't correct it. इसलिए उसका सुधार करना बहुत जरूरी है। We don't seek the Lord. हमें प्रभु को इस रीति से ढूंढना है। If we don't call upon him and say, Lord, I want to see.
अगर उस रीति से हम प्रभु को नहीं बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, I want to stop stumbling. मैं वापस ऐसे गिरना नहीं चाहता हूँ। Lord, I believe you're able to keep me from stumbling. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ऐसे ठुकरा के गिरने से आप बचाओगे। The last verse of the letter of Jude. यूदा के आखिरी वचन जो लिखा हुआ है, Now to him who is able to keep us from stumbling, इसलिए वह जो हमें गिरने से बचाता है, not just falling. केवल हमें ऐसे गिरने से ही नहीं, Yes, he can keep us from falling, but to stumble, that you don't fall, but you stumble. परंतु हमें खड़ा करके रख सकता है ठुकरा के गिरने से भी। Our brother Sam stumbled and dislocated his elbow. हमारे भाई सैम ठुकरा कर गिरे और उनका एड़ी खराब हो गया। And you know, spiritually, we can stumble and lose our faith. इसी रीति से आत्मिक रीति से भी हम ऐसे ठुकरा कर गिर कर हमारे विश्वास से But हम गिर सकते he is हैं, able to keep us from stumbling. परंतु ऐसे ठुकराव से गिरने से प्रभु हमें खड़ा करके रख सकता So है। we need to be cured of our spiritual short-sightedness, our spiritual nearsight, where we see only things before us. इसीलिए हमारे जो नजदीक की दृष्टि का जो बीमारी है उसमें से हमें छुटकारा पाना है। The other thing is that people will suffer with spiritual nearsightedness. दूसरी एक चीज जो ऐसे बीमारी वाले व्यक्ति के विषय में बोला You गया know, है, they lack spiritual discernment. वह है कि वह सही रीति का डिसर्नमेंट नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, And they are easily misled by false teaching and worldly temptations. गलत शिक्षाएं और दुनिया के पीछे वह गलत रीति से फंस जाते हैं। There were weak women who were misled by these people. और ऐसे जो कमजोर स्त्रियां हैं उनको वो गलत रीति में लेके जाते हैं। Paul writes about them to Timothy. पौलुस इन व्यक्तियों के विषय में तिमोथी को लिखता है, They creep into homes उनके घर में वह छुप कर जाते हैं and mislead weak women laden down with sin. और ऐसे दबे हुए स्त्रियों को उनको गलत रास्तों पर लेके जाते हैं। And not only that, but such ones with spiritual nearsightedness, you know, can end up self-centered instead of Christ-centered. ऐसे लोग जो ऐसे दूर की दृष्टि नहीं है, वह खुद में अपने आप में बसे रहते हैं बल्कि कि ख्रिस्त में। So I want you to see that it's dangerous to continue to live looking at everything from a human point of view. इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें ऐसे दूर की दृष्टि को देखना है, केवल नजदीक का ही नहीं। I become a stumbling block in the church. जब मैं ऐसे जीता हूं तो मैं कलीसिया के लिए एक बाधा का रीति में आ जाता हूं। Not only do I stumble, but I make others stumble. केवल मैं ही नहीं गिरता परंतु मेरे साथ वालों को भी मैं गिराता हूं। So what is the cure? इसके लिए क्या उपाय है या उपचार क्या है? I need to go to the great physician, the great eye doctor, and say, Lord, I need to see all things clearly. इसीलिए मुझे वह परमपिता के पास जाना है, वह बड़े डॉक्टर के पास जाना है जो मुझे इसमें से छुटकारा दे सकता है। I need to see everything from God's point of view. तब मैं सब चीजें प्रभु की दृष्टि में मैं देख सकता हूँ। Number one. पहली चीज, That is the number one cure. वही पहली उपचार है, प्रभु के पास जाना। The first thing. पहली चीज, The Holy Spirit will help me to see everything from God's point of view. पवित्र आत्मा सब कुछ प्रभु की दृष्टि में हमें दिखाने के लिए मजबूत कर सकता है। All of us suffer with spiritual nearsightedness. हम सभी लोग ऐसे दूर की दृष्टि ना देखने की बीमारी से फंसे हुए हैं। But if we are seeking God, if we have received the baptism of the Holy Spirit, I will begin to see things clearly. My spiritual myopia will get cured. परंतु अगर ऐसे हम खोजी होकर हमारे बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो प्रभु हमें दूर की चीजों को भी देखने में मदद कर सकता है। How will it be cured? How will it be cured? हम किस रीति से इसमें से छुटकारा पाएंगे? Look at Revelation chapter 4 verse 1. प्रकटीकरण 4 अध्याय का पहला वचन ऐसे This बोलता है। is John, the disciple. यूहन्ना जो शिष्य थे, You know, the one who lay on Jesus' breast, जो प्रभु के छाती पर लेटा हुआ था, and through whom Jesus wrote to the 7 churches. जिसके द्वारा वो 7 कलीसियाओं को उसने पत्र भेजे थे। 5 of them he had to censure, 2 of them he commended and praised. और 5 कलीसियाओं को उनको उनकी गलती दिखाना पड़ा और 2 लोग के विषय में उन्होंने उन्हें प्रेज किया। And he encouraged the ones who Jesus had nothing negative to say about them.
और जिनके विषय में वो उनको गलत बताना था उनके विषय में उन्होंने बताया उनकी And सही स्थिति। after having such an awesome responsibility to write to these 7 churches, ऐसे एक उत्तरदायित्व के साथ इन कलीसियाओं को लिखने के बाद one church, he says, I'm ready to remove the lampstand from your midst. और वहाँ एक कलीसिया को बोलता है कि आपके बीच में जो लैम्प स्टैंड रखा हुआ है उसको मैं निकालना के लिए तैयार हूँ। And to the church in leader in the church in this year, he says, I want to spit you out of my mouth. You're neither hot nor cold. You're lukewarm. So I'm ready to spit you out of my mouth. लियोडियस के कलीसिया को वो बोलते हैं कि ना आप गर्म हो ना ही आप ठंडे हो, इस कारणवश मैं आपको थूकना चाहता हूँ। And after having to write all these things, यह सब चीजें बताने के बाद, and in every letter he had to say to all the leaders and to all the churches, let him who has a ear hear what the Spirit is saying to the churches. और हर एक कलीसिया को लिखते वक्त वह यह वाक्य बार बार दोहराते हैं कि जिसके पास कान हो वह सुने जो आत्मा बताना चाहता है। Chapter 4 verse 1. चौथा अध्याय का पहला वचन, Revelation chapter 4 verse 1. प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय So का after पहला। these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet, speaking with me, said, Come up here, and I will show you what must take place after these things. इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की और देखा स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तुरही की ध्वनि के समान जो प्रथम आवाज मैंने सुनी, उसने कहा, यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे इन बातों को दिखाऊंगा जिनका इनके पश्चात होना अवश्य है। Come up here. यहाँ ऊपर आ। यहाँ ऊपर आ. Come up here and I will show you. यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे दिखाऊंगा। Have you heard that voice? क्या ये वाक्य आपने सुना है? For John it was clear as a trumpet. यह जो वाक्य यूहन्ना ने सुना वह एक तुरही की समान था। Why was it clear as a trumpet call? वह क्यों इस रीति से इतना जोर से तुरही की तरह वह सुन पा रहा था? John had given his ear to listen to God. क्योंकि यूहन्ना ने अपने कान प्रभु की वाणी सुनने के लिए उसने बना के रखा था। He was about 90 plus years. वह 90 साल के ऊपर का हो चुका था। So the voice was so clear. इसलिए वह वाणी वह सही रीति से समझ पा रहा था। Come up here. यहाँ ऊपर आ and I will show you. और मैं तुझे दिखाऊंगा। Have you heard that? ये वाणी आपने सुना है क्या? I've heard it, but not as clear as John heard it. मैंने सुना है जिस रीति से यूहन्ना ने सुना उस रीति तक नहीं। I want to hear it as clear as he heard it. मैं और अच्छी रीति से जिस रीति से यूहन्ना सुना उस रीति से सुनना चाहता I हूँ। need to hear it in the coming days as clear as John heard it. मैं आने वाले दिनों में जिस रीति से यूहन्ना ने सुना उसी रीति से मैं भी सुनना चाहता And हूँ। you all need to hear it as clear as John heard it, my brothers and sisters. हम सभी को वैसे ही सुनना है जैसे यूहन्ना ने सुना। मेरे भाइयों और बहनों, Come up here. ऊपर आइए। Now you can practice hearing that voice. अब यह सुनने में आप वह उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। You go back home आप घर पे चाहिए, and something has gone wrong. वहाँ कुछ गड़बड़ हो चुका है। Oh, you go back to the office. आप ऑफिस में वापस जा रहे हो And maybe they say, you know, we are cost cutting, so we've got to give you the pink slip. और यहाँ पर हम सब पैसे की कमती कर रहे हैं, इसलिए आपको घर जाना पड़ेगा। You got to clear your desk and quit by the end of this month. और आपको इस महीने के आखिरी तक आपको घर पे जाना है वापस। Sorry about that. We'll give you 4 months salary. हमें दुख है इसके बारे में, परंतु हम 4 महीने का आपको पगार दे देंगे। That can unnerve you, isn't it? ये सुनते ही शायद आप घबरा जाओगे, Especially you have a family with children. अगर आपके बच्चे हैं और आपको अपना कुटुंब संभालना है तो। We've been in such situations. ऐसे शायद हमारे जीवन में हो। I shared something of that with you. मैंने ऐसे कुछ चीजें आपके बीच में बात की मैंने। But I thank God that I heard that voice, come up here and you will see. परंतु मैंने वह वाणी सुनी जो बोल रहा है कि यहाँ ऊपर आ। And I want to encourage all of you. मैं आप सबों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Tune your ear from now, from this camp, to hear that voice. Come up here, and I will show you. इस कैंप के समय से आप वह वाणी सुनने के लिए अपने आप को तैनात कीजिए जो बोल रहा है यहाँ ऊपर आ।
What must take place after you lose your job? What takes place after maybe something has gone wrong in the home? आपको क्या करना है ऐसी अवस्था होने के बारे में? अगर घर पे कुछ गड़बड़ हो गया या ऑफिस में आपको भेज दिया जाए तो क्या करना है उसके विषय में क्या आप सुन पा रहे हो? And if we respond to that voice, अगर आप उस वाणी को प्रति उत्तर दे सकते instead हो, of looking at things from a human point of view, अगर आप मानसिक रीति से या मनुष्य की रीति में ऐसी चीजों को देखोगे, the scales have dropped from my eyes. तो ये जो आंखें जो बंद हैं आपकी, I'm tempted to look at things from a human point of view, जिस कारणवश सब मनुष्य की रीति में आप सब कुछ चीजें देख रहे हो, but I refuse to walk by my senses. परंतु मैं मेरी जो सेंसस है उसके अनुसार मैं नहीं चलना चाहता I हूँ। refuse to walk by my circumstances, मेरी अवस्थाओं के अनुसार मैं नहीं चलना चाहता हूँ and I respond to walk by faith. और मैं विश्वास के साथ चलना चाहता हूँ। And then I see things from God's point of view. जब मैं ऐसे ही चलता हूँ तो प्रभु जैसे देख रहा है उस रीति से मैं सब चीजों को देख पा रहा हूँ। I want to say to you, my brothers and sisters, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, we need this in the days ahead. We need this in the days ahead to see everything from God's point of view. हमें आने वाले दिनों में ऐसे देखना बहुत जरूरी है। So let's practice hearing that voice till it becomes clearer and clearer. इसलिए हमें यह सुनने का जो क्षमता है वो हमें बढ़ाना है सही रीति से सुनने के लिए, And we get cured of our spiritual myopia. और हमारे जो नजदीक की दृष्टि की बीमारी से हमें छुटकारा पाना है। And I see all things clearly. I see things from God's point of view. तब मैं सारी चीजों को सही रीति से देख सकता हूँ और प्रभु जैसे देख रहा है वैसे मैं देख सकता हूँ। Paul says, this was his prayer for the Colossians in chapter 1, verse 7. कुलुसी की कलीसिया के लिए पहले अध्याय के 7वें वचन में पौलुस ऐसे बोलता है। Colossians 1, verse 7. This is Paul's burden for this church. कुलुसी कलीसिया के लिए उसका जो भार था वह उस वचन में लिखा है। This was a wonderful church, the church in Colossae. कुलुसी का जो कलीसिया था वो एक अच्छा कलीसिया था। Paul never visited them, वहाँ पौलुस गया नहीं था, but he wrote a letter. It must have been a very wonderful church. परंतु केवल उसने एक पत्री लिखा था उनको। Because he says here in chapter 1, verse 7, पहले अध्याय के 7वें वचन में वह ऐसे लिखा हुआ है। I want to read it to you from another translation. एक के साथ मैं एक दूसरी परिभाषा से You आपको can पढ़ के देना follow in your Bible. Colossians 1, verse 7. कुलुसी का 1 का 7वां वचन आपके बाइबल में देखिए, मैं दूसरी परिभाषा से पढ़ रहा हूँ। Paul says, he says, we heard about your growth in Christian love, so you will understand that since we heard about you, we have never missed you in our prayers. हम देख रहे हैं कि आप जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो उसी रीति से हम हमारे प्रार्थनाओं में आपको भूल नहीं रहे हैं। We have never missed you in our prayers. We have never stopped praying for you. हम कभी भी आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। What did he pray for? उसने किस बात के He लिए प्रार्थना says, की? we are asking God that you may see things as it were from his point of view by being given spiritual insight and understanding. हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको एक आत्मिक आंख मिले ताकि आप प्रभु की दृष्टि में आप सब चीजों को देख पाएं। And he goes on to say, we also pray that your outward lives, which men see, may bring credit to your master's name, and that you may bring joy to his heart by bearing genuine Christian fruit, and that your knowledge of God may grow yet deeper. और मैं विश्वास करता हूं कि आपका जो फल है वो ऐसा अच्छा बने ताकि प्रभु की महिमा हो, That you may see things from God's point of view. ताकि आप प्रभु की दृष्टि में सब चीजों को देख पाएं। That is what we need, my brothers and sisters. यही चीज हम सबको जरूरतमंद है We भाइयों बहनों। need spiritual insight and understanding. हमें ऐसी एक दूरदृष्टि चाहिए। Peter didn't have it because he didn't have the Holy Spirit yet. पतरस को वह दूरदृष्टि नहीं थी क्योंकि उसको पवित्र आत्मा मिला नहीं था। And that's why he saw things from a human point of view. इस कारणवश वह सब चीजें मनुष्य की रीति में ही वह देख रहा था। That's why his mind was set on man's interests and not on God's interests. इसीलिए उसकी जो उद्देश्य थे वे सब मनुष्य की चीजों पर लगी हुई थी, परमेश्वर के नहीं। And that's why he became a stumbling block to Jesus. इसी कारणवश वह प्रभु के लिए एक रुकावट का कारण बन गया। And he gave room for the devil to come and stumble Jesus. इसीलिए उसने शैतान को एक जगह बनाया ताकि वह यीशु को रोक सके। Just imagine if you are called the devil. सोच के देखो, अगर आपको कोई बोलता है शैतान करके,
Get behind me, Satan. मेरे पीछे निकल जा शैतान करके। You see the attack that Satan made on Jesus? सोच के देखिए कैसा बुरा रीति से शैतान प्रभु के विरोध में खड़ा था। No, Peter was not play acting there. The devil had really got access through him to attack Jesus. पतरस को उस रीति से शैतान ने पकड़ लिया था और प्रभु के विरोध में वह कार्य कर रहा था। But Jesus never for a moment gave room. He said, "Get behind me, Satan." परंतु प्रभु यीशु ने बिल्कुल उसको जगह नहीं दिया और बोला कि तू पीछे निकल जा। You're a snare, you're a trap for me. तू मेरे लिए एक फसाव का कारण है, तू And I निकल want जा। to say to my brothers and sisters that without the Holy Spirit, you become a stumbling block in the church. मैं भाइयों बहनों ये बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के बिना आप एक रुकावट बन सकते हो कलीसिया के लिए। That is a burden on our hearts. यही हमारे हृदय की आग्रह है। And that's the burden on my heart for the church in Bangalore. बंगलुरु की कलीसिया में जो मेरा जो भार है वह यही है। Because people can come into the church, be blessed, and then end up with a form of godliness without the power. भाई लोग आ सकते हैं, बहन लोग आ सकते हैं, प्रभु की वाणी सुनकर वो आशीषित हो सकते हैं, परंतु धर्म का केवल एक बनावट रह जाएगा, उसकी शक्ति नहीं है उनके अंदर। And do you think Mumbai is exempt? क्या आप सोचते हो कि मुंबई इसमें से बच गया है? That is what makes the times difficult. यही बताता है कि आज का दिन जो है वो कठिन है। Because these people can love themselves, they can love money, they can love pleasure, and have a form of godliness without the power and deceive other people. वह अपने आप को इस धरती के चीजों को, धन दौलत को प्रेम करके एक केवल भक्ति का रूप रख सकते हैं, परंतु उसका शक्ति उनमें ना रहे। God forbid that such a condition should come among us. प्रभु दया करे कि ऐसी अवस्था कभी हमारे बीच में ना आए। That is why it's so important to be baptized in the Holy Spirit and fire. इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि हम उस रीति से पवित्र आत्मा से भर जाएं, To be immersed in the Holy Spirit. ताकि हम वह पवित्र आत्मा में पूरी रीति से डूब Then जाएं। I can live a spiritual life. तभी वह आत्मा से भरा हुआ I will जीवन never हम be जी a सकते हैं। stumbling block. तब कभी भी हम एक रुकावट का कारण नहीं I'll बनेंगे। be a stepping stone. I'll be an encouragement to the brothers and sisters. ऐसा रहा तो मैं हमेशा लोगों को उन्नति की ओर लेके जाने वाला एक भाई बनूंगा। And we see many examples of this in the scriptures. ऐसे चीजों के विषय में हम पवित्र शास्त्र में कई उदाहरण पढ़ते हैं। If you read Numbers chapter 14, गणना का पुस्तक 14वें अध्याय में हम we don't पढ़ते have हैं। time to turn to it. हम वहां नहीं जाएंगे But समय you की know the कमती- story about the spies that were the 10 spies that were sent out to spy the land of Canaan before they can enter. वह स्पाइस के विषय में हम पढ़ते हैं जो कानान में जाके सब कुछ गुप्त रूप में पता करके वह बताने के लिए गए थे। 8 of them saw themselves as grasshoppers 8 लोगों को देख के उनको लगा कि वे केवल गिरगिट के समान हैं। in their sight, these big giants. वो जो बड़े थे उनके आंखों के सामने वे बड़े छोटे दिख रहे थे। They came back with a bad report. वह वापस आके एक गलत रिपोर्ट बता रहे थे। No, we cannot enter. हम वहां नहीं जा सकते कानान We are में। like grasshoppers in their sight. हम उनके सामने एकदम छोटे हो गए हैं। Only 2 of them. केवल 2 ही थे। What did they say? उन्होंने क्या बोला? We will eat them up. हम उन्हें खा जाएंगे। Do you know that's what they said? यही ये बताया है कि You आप like जानते it, हो। you can look at it in Numbers chapter 14 verse 9. आप गणना का पुस्तक 14वें अध्याय में जा सकते हो। Numbers chapter 14 verse 9. 14वें अध्याय का 9वां I वचन। encourage you, my brothers and sisters, bring a Bible with you to church. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आपका बाइबल लेके आए कलीसिया में। Why do I say that? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? Because you can look at these verses in scripture and then go back home and meditate on it. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये वचन अभी पढ़ के घर पे जाके वापस उसको दोहरा सकते हैं। On your mobile or iPad, you just forget about it. परंतु केवल आप आपके मोबाइल में या आईपैड में देखोगे तो अभी देखोगे वापस आप भूल I जाओगे। exhort you in the name of Jesus, मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। bring a Bible to church. आप आपका बाइबल आप कलीसिया में लेके आइए। So, Numbers chapter 14 for those who have Bibles, verse 9. जिनके पास बाइबल है वे कृपा करके 14वें अध्याय गणना के 9वें वचन पढ़ेंगे हम। What did they say? They will be our prey. You look at the margin, the literal word there is food. Otherwise, it's saying, we will eat them up because their protection has been removed from them. वे हमारा आहार ठहरेंगे
क्योंकि उनके ऊपर जो बचाव है वह उनसे निकल चुका है। 8 of them said they are grasshoppers. 8 लोग बोले कि वे एकदम छोटे हैं 2 of them said we'll eat them up. और 2 बोलते हैं कि हम उनको खा जाएंगे। Why? क्यों? They heard the voice come up here. क्योंकि उन्होंने वह वाणी सुनी जो बोला, They saw things from God's point of view. उन्होंने सुना कि आप ऊपर आ जाओ। उन्होंने प्रभु की रीति में देखा। God is pleased with us. He will give us the land. प्रभु जो चाहता है वह राज्य हमें देगा। That's why God said of Caleb and Joshua also that they had a different spirit and they followed the Lord fully. इसीलिए इन दोनों भाइयों के विषय में बोला गया कि उनको ऊपर एक दूसरी आत्मा थी और वह प्रभु के पीछे चले थे। The different spirit was the spirit of faith in them. वह जो अलग सी जो आत्मा थी वह विश्वास की आत्मा थी। The different spirit was the light was in them. और वह जो अलग सा आत्मा थी वह उनके अंदर जो प्रकाश था, They couldn't be stumbled. वे एक रुकावट के कारण नहीं थे। We'll eat them up. हम उन्हें खा जाएंगे। And when such times come upon us, my brothers and sisters, मेरे भाइयों, ऐसे जो अवस्था जब हमारे बीच में आएगी, I trust that we will not stumble. मैं विश्वास करता हूँ कि हम ऐसे ठोकर नहीं खाएंगे। When we see those who oppose the disciples of Christ, I'm not talking about Christianity, but those who oppose disciples of Jesus, that we will see things from God's point of view. जब हम देखेंगे कि कई ऐसे अच्छे विश्वासियों को एक रुकावट का कारण बन के लोग आएंगे तो उनके विरोध में खड़े होने के लिए हमारे पास विश्वास रहेगा। When in your company they put you down because you're a Christian, don't give you a promotion, don't give you an incentive. क्योंकि आप एक ख्रिस्ती हो, आपके कंपनी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा और आपको नीचे डालते हैं, इन अवस्थाओं में When your neighbors look down upon you because you know they see you a different Christian. क्योंकि आपके पड़ोसी जो हैं आपको देखते हैं और देखते हैं कि आप एक व्यत्यस्त ख्रिस्ती हो। I hope you'll not stumble. मैं विश्वास करता हूँ कि इन समय में आप ठोकर नहीं खाओगे। I hope you see things from God's point of view. उन समयों पर आप प्रभु की दृष्टि में आप उन चीजों को देख You पाओगे। look at another example in Jacob. मैं एक दूसरा उदाहरण याकूब के विषय में You बोलना don't have चाहता time हूँ। to turn to it. वहां जाने के लिए समय नहीं है। Chapter 42, verse 36. 42 का 36। When they brought back news, that Simeon was taken prisoner in Egypt, and now they were asking for Benjamin. And Jacob was so grieved. He says, "You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. All these things are against me." याकूब के जीवन में जब हम जानते हैं कि उसके बड़े लड़के को वहाँ फंसा दिया था सिमियोन को, उसके बाद उसके छोटे लड़के को भी मांगते हैं, तब वहाँ याकूब पूरी रीति से टूट जाता है कि मेरा सब कुछ नाश हो गया करके। All these things are against me. यह सारी चीजें मेरे विरोध में खड़ी हैं करके वो बोलता है वहाँ पर। Really? सही रीति में ऐसा ही है क्या? You and I know the story. You know what became. हम जानते हैं कि उसके आगे क्या हुआ था। ऐसा नहीं था। You know that Jacob and his whole family can go into Egypt. परंतु सही रीति में याकूब और उसके सारा परिवार वहाँ मिस्र में जाने के लिए सारी तैयारी थी। That's how it is when we look at things from a human point of view. ऐसी अवस्था हमारे बीच में भी होती है जब हम मनुष्य की रीति में चीजों को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। You think even God is against me. ऐसी अवस्था में हम ऐसे भी सोच बैठते हैं जैसे कि प्रभु हमारे विरोध में है। I hope that you will say, "Lord, open my eyes." मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस समय पर पुकारोगे, प्रभु मेरे आंखों को खोलिए। Another example in 2 Kings in chapter 6, verse 15 to 17. दूसरा उदाहरण, दूसरा राजा। Elisha, the king, was after him to really put an end to his life and sent the whole army to get Elisha. एलाइशा को पकड़ने के लिए पूरा एक सेना को भेजा था उस राजा ने उसको मारने के लिए। They surrounded the house. और पूरे एलीशा के घर को पूरा उन्होंने घेर लिया था। Servant went out and he saw the whole house surrounded by this army of soldiers. और उसने बाहर जाके देखा तो ये पूरी रीति से घिरा हुआ है उन सैनिकों के द्वारा। And Ahab was after him. और एहाब उसके विरोध में था। And he came back and said, "Elisha, master, we are surrounded." उसका सेवक गया था, सेवक वापस आके बोलता है, No escape. पूरी रीति से हम घेरे गए, हम बचने का कोई रास्ता नहीं है। And what Elisha prayed? एलीशा ने क्या प्रार्थना किया You वहाँ see पे? there in 2 Kings in chapter 6, 15 to 17. हम दूसरी राजा 6वें अध्याय के 15 और 16 में पढ़ते हैं कि वहाँ क्या एलीशा प्रार्थना करता है। Prayed a one sentence prayer. वहाँ एक वाक्य का प्रार्थना किया उसने। Lord, open his eyes.
प्रभु इसके आंखों को खोलिए। And he said, go back and see again. और बोला वापस जाकर देख। And he went back and he saw the whole countryside, all around all the hills surrounding this garrison was an army of God, was angels all around them. और वह बाहर जाकर उसने देखा पूरे चारों तरफ के पर्वत पर पूरी प्रभु की सेनाओं से भरा हुआ है। How did that happen? ये कैसे बदलाव आया? Because Elisha prayed, Lord, open his eyes. क्योंकि एलीशा ने प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंख खुल जाए। Sisters, when your husband comes back and says to you, I've lost my job. और बहनों मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपका पति वापस आकर बोलता है कि मेरी नौकरी चली गई है, and he's discouraged, और वह खुद निराश and है, you get discouraged with him, और आप भी उनके साथ निराश हो जाते हो, I hope you have the spirit of Elisha. मैं विश्वास करता हूँ कि आप में वो एलीशा का आत्मा रहेगा। I hope you have the Holy Spirit that you can say, Lord, open his eyes. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में वो पवित्र आत्मा रहेगा कि आप प्रार्थना करो कि आपके पति का आंख खुल जाए। My husband, God has something better for you. यह देखे कि मेरे पति को प्रभु ने और कुछ अच्छा रखा हुआ है। I hope we husband can encourage our partners, our wives that way. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे पति भी उस रीति से अपने पत्नियों को भी God प्रोत्साहन has दें। something better. प्रभु के पास कुछ और भी अच्छा Let's रखा हुआ pray है। for one another. Lord, open his eyes, open her eyes, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि दूसरे का आंख खुल जाए, so that we don't see things from a human point of view. ताकि हम सब चीजों को मनुष्य की रीति में ना I can देखें। go on and on इस रीति से कई चीजें just to encourage you, हम बोल सकते हैं, to help आप- you to see that it is fatal if we continue in our nearsightedness. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस रीति से हम चलते रहे तो हमारी आत्मिक अवस्था का अंत बहुत बुरा हो सकता I want है। you to look at one more incident in Matthew chapter 16. मैं एक और ऐसी अवस्था के विषय में मत्ती 16वें अध्याय में मैं Matthew पढ़ना चाहता chapter हूँ। 16 verse 5. मत्ती 16वें अध्याय का 5वां वचन। Encourage all of us who have poor memories and we forget sometimes, we forget things. And sometimes you forget where you put your vehicle keys, you forget where you put your house keys. So many things. मैं ऐसे सब भाइयों बहनों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ जो भूल जाते हैं कई चीजें, चाबी कहीं रख देते हैं या कुछ चीज भूल जाते हैं वहाँ। इन ऐसे भाइयों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। So I'm encouraged by this मैं इससे अधिक प्रोत्साहित हुआ हूँ because I have very poor memory. क्योंकि मेरे को भी खुद याददाश्त में बहुत जल्दी खो बैठता हूँ। I have to keep asking people, what is your name? Maybe fifth time, sixth time. कई लोगों को मुझे बार बार पूछना पड़ता है आपका नाम क्या है, कभी कभी 5 या 6 बार पूछना पड़ता है। And I say to the brothers and sisters back home, don't get offended with me, but one day I'll remember you. I'd like to call you by your name, not just brother or sister. इसलिए मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि मेरे ऊपर निराश मत होना, मैं एक दिन इतना अच्छा बनूंगा कि मैं आपका पहले नाम से आपको बुलाऊंगा। But for all of us who have this habit of forgetting things, और ऐसे सब भाई लोग जो ऐसे भुलक्कड़ हैं, no, we don't want to find refuge in this, but it says here in verse 5, 16 का 5वां वचन, the disciples came to the other side of the sea, but they had forgotten to bring any bread. फिर चले उस पार पहुंचे परंतु वे रोटी लेना भूल गए थे। And when Jesus was talking to them about the teaching of the scribes and Pharisees, they thought that he was talking to them about bread. और प्रभु यीशु फरीसी और सदूकियों के जो उपचार है उसके बारे में बता रहे थे, तो उनको लगा शायद वे आहार के बारे में बात कर रहे हैं। And Jesus, it says, they became aware of this in verse 7, और 7वें वचन में verse यह 8. 8वें वचन में It says, you men of little faith, why do you discuss among yourselves that you have no bread? Do you not yet understand or remember the 5 loaves or the 5,000 and how many baskets full you picked up? परंतु यीशु ने 8वां वचन, परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5,000 लोगों के लिए 5 रोटी थी तो तुमने उनके लिए टोकरे उठाए थे? And the 7 loaves and how many thousands I fed? और 7 रोटी से कितने लोगों को मैंने उनका पेट भरा था? If you read the account in Mark, you see that they had all the right answers. मरकुस की इसी के विषय में पढ़ते हैं तो उनके पास सही उत्तर थे। The 5 loaves, here we picked up 12 baskets. 5 रोटी थे परंतु 12 टोकरियां उन्होंने उठाई। The 7 loaves, we picked up 7 baskets. 7 रोटी थे और 7 बास्केट उठाए। And it says that it's so sad, it is, with sadness, Jesus says to them, दुख के साथ प्रभु ऐसे He बोलते says, हैं, do you not yet see or understand?
वहाँ प्रभु दुख के साथ बोलते हैं, क्या अभी भी आप देख नहीं पा रहे हो? Do you have a hardened heart? क्या आपका हृदय अभी भी कठोर है? We don't see, we don't understand, we see God work in different other situations. And when we come into a trial, we come into a problem, and we think, yeah, I forgot this, oh, I failed to do this. और कई बार प्रभु ने कई चीजें करने के बावजूद भी जब एक नए अवस्था में आते हैं कि प्रभु ऐसे कठिनाई से जाते हैं, तो हम भूल बैठते हैं कि प्रभु ने क्या हमारे लिए किया था। But to believe that Jesus is the blessed controller of everything. हमें उन सभी अवस्थाओं में यह विश्वास करना है कि परमेश्वर यह सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। Even sometimes when we forget things. उन समय पर भी जब हम कुछ भूल बैठते As हैं, I'm looking at things from God's point of view. उन सभी समय पर हमें परमेश्वर जैसे इन चीजों को देख रहा है वैसे हमें देखना है। So the disciples not only suffered from spiritual nearsightedness, they suffered from spiritual amnesia, which means they forgot what God had done. यह शिष्य केवल दूर की दृष्टि ना देखने की बीमारी से नहीं, परंतु वह Amnesia, forgetfulness. वह भुलक्कड़ थे, उस बीमारी से भी फंसे हुए थे। That's what the children in the wilderness, the children of Israel in the wilderness, they suffered badly from forgetfulness. यही चीज जो इज़राइल की ओर चलने वाले पूरे लोग थे, वे भी प्रभु ने जो कार्य किए थे वह भूल बैठे थे। So they complained and grumbled. इसीलिए वे हमेशा कुड़कुड़ाते थे। They didn't see all that God had done for them. उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु ने क्या-क्या चीजें उनके लिए की है। Forgot all the miracles. जो भी प्रभु ने अद्भुत काम किए Forgot थे, all the supernatural healing. जो चंगाई की थी, Supernatural food from heaven. जो प्रभु ने ऊपर से स्वर्ग से जो आहार भेजा था, Supernatural water from a rock. पानी पत्थर के बीच में से उनको मिला Many था। things. ऐसे कई चीजें उनके जीवन में They की did थी, not see or understand परंतु ये सब चीजें उनको नहीं छू पाया, because they looked at things from a human point of view. क्योंकि वो हमेशा नजदीक की दृष्टि में ऐसी चीजों को देख रहे थे। What happened? उसका अंत क्या हुआ? They all died in the wilderness. वे सभी लोग जंगल में ही मृत्यु पा गए। And the children that they were afraid of would also suffer and die. They are the ones who entered into the promised land. परंतु उनके बच्चे जिनके विषय में वे चिंतित थे, वे थे जो जंगल से आगे निकलकर कनान जा पाए। And that's how it is today. वही चीज आज भी संभव होता है। The first shall be last, पहला जो है वो आखिरी बनेगा, and the last will be first. और आखिरी जो है वो पहला बनेगा। So I pray to God मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ that we see the importance of seeing everything from God's point of view. यह जानने के लिए कि हम सब चीजें प्रभु की दृष्टि में देखें। Here is a choice that I can make also every day. यह भी एक चुनाव है जो हमें हर रोज हमें लेना है। That I could say in the morning when the Lord awakens my ear, Lord, there are a lot of things that are going to happen today. जब मैं मेरे आंखें खुलते हैं प्रभु सुबह सुबह कई चीजें आज घटने वाली हैं। But there is nothing that's going to happen to me today that you and I will not be able to handle. कई चीजें आज घटने वाली हैं, परंतु ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। Because you are the blessed control of everything. क्योंकि आप सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखते हो। And I pray to God that God will really help us और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु हमें सही रीति से मदद करे। to hear those words come up here. वह वाणी हम सुन पाए जो बोलता है कि उठकर ऊपर आ। And I will show you what will happen. और मैं तुझे दिखाता हूँ क्या होने वाला है। And then we will always be at rest. तब हम हमेशा हमारे जीवन में वह शांति पाएंगे। We'll go from faith to faith, from strength to strength, and from glory to glory. और विश्वास से विश्वास तक प्रगति पा सकते हैं हम। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे we thank you that you are Lord God of heaven and earth. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हुए परमेश्वर हो। Lord Jesus, we thank you for the life that you lived on this earth. हम धन्यवाद देते हैं कि जो इस धरती पर आपने जो जीवन जिया, We thank you for your example. आपके उदाहरण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we ask you this evening हम इस समय प्रार्थना करते हैं to really open our eyes कि आप हमारे आंखों को खोले
and begin to cure us of our spiritual nearsightedness. और हमें उस बीमारी से निकाले जो केवल नजदीक की दृष्टि से देखता है, By helping us to listen to that voice to come up here. और वह वाणी हम सुन पाए जो हमें बुलाता है कि चल ऊपर आ। Come up where you have seated us together with you हमें वहां तक पहुंचाए जहां पर आप बैठे हुए हैं, in the heavenly places. वहां जहां स्वर्गीय स्थानों पर। Lord Jesus, that's our rightful place. प्रभु वही हमारा सही स्थान है जहां आप बुला रहे हो हमें। You've not only seated us there, you've blessed us with every blessing in the heavenly places. केवल आपने हमें वहां रखा नहीं, परंतु सारी स्वर्गीय चीजों से हमें भरा हुआ है। That even as we live this life on this earth, that we can see everything from your point of view. और जब हम इस धरती का जीवन जी रहे हैं, उन समय पर ये सब चीजें आपके नियंत्रण में है करके समझ पाए। Lord, we confess we are so weak here. प्रभु हम यह बोलना चाहते हैं कि हम इन सब चीजों में बहुत निर्बल हैं। Taken up with everything that we see before us, and we get unsettled and shaken in our faith. और हम कई बार ऐसी चीजों में अवस्था में गिरने के बाद हम हिल जाते हैं। But we want things to change. परंतु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए। Pour out your Spirit upon us. प्रभु आपकी आत्मा को हमारे बीच में भेजिए। Tonight as we seek you, Lord. हम जैसे इस रात में आपको बुला रहे हैं। As you met with us last night, meet with us again tonight. Pour out your Spirit upon us. आप जिस रीति से कल रात को हमसे मिले थे, उस रीति से आज भी हमारे ऊपर उतरिए। Let your Holy Spirit come upon us. आपकी आत्मा हमारे ऊपर आए। That the scales will drop from our eyes. ताकि जो हमारा आंखें बंद हैं वो खुल जाएं। That we will live our life on this earth. ताकि हम ये जीवन जो इस धरती पर हम जी रहे Seeing हैं, everything that happens to us. जो सब चीजें हमारे जीवन में घटती हैं, Everything that you allow and permit. और हर एक चीज जो अनुमति आप देते हो हमारे All the जीवन में घटने trials के and लिए, all the difficulties. जो परेशानी या दुख से हम जाते हैं, We know that you hold the future. हम ये जानते हैं कि आप हमारा भविष्य संभालते And we हो, know you hold our hand. और हम जानते हैं कि आप हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। So we need never fear. इसलिए हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते We हैं want to प्रभु। live our life here on this earth. हम इस धरती का जीवन आपके लिए जीना चाहते हैं, Fight the good fight of faith. और वह विश्वास का युद्ध करना चाहते हैं। We thank you that you will give us your Spirit to this end. हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो आत्मा से हमें भरोगे। In Jesus' name. प्रभु यीशु Amen. के नाम में प्रार्थना करते हैं।